I'm Vardha Sharma, editor Newsband, daily English newspaper of Navi Mumbai. Today we have with us Assistant Police Inspector Mr. Sambhaji Gurav, who is currently posted with the Navi Mumbai Police. He has made Navi Mumbai and Maharashtra Police proud by becoming the third police officer from Maharashtra to scale Mount Everest, the world's highest mountain peak, on 23rd May of this year. First of all, Mr. Sambhaji Gurav, heartiest congratulations and welcome. Thank you. Namaste. Mr. Gurav, since how long had you been preparing for this expedition? First to thank ma'am to invite me. Actually, I joined the police department as a PSI in 2010. After a year of training at Nasik, my first posting was at Gadchiroli, Naxal affected area, and then I have working in Navi Mumbai. When I trekked Everest Base Camp first time in year 2017. That time I had no plan to climb Mount Everest, but in March 2018, my mother died due to brain stroke disease. At that time, I was in hospital with my mother for 2 months. One thing I noticed from reading and discussion with doctors is that symptoms of brain stroke is opens for many months before it comes. For example, that person may repeat same things over and over again. At that time, I failed to identify those symptoms. That was my biggest mistake. This made me feel guilty, and after my mother's death, I cannot perform any religious rites like haircut and other spiritual rites. And I decided that I should pay homage to my mother, for which I will have tremendous physical pain. And at that time, I will remember my mother's sacrifice every time. Therefore, in June 2018, I decided to climb world's highest peak, Mount Everest, and started preparation at the same time. Mr. Gaurav, हम सबको पता है कि पुलिस फोर्स जो है उसमें ऑलरेडी इतना मेहनत का काम है. I mean, you are on the toes 24/7. उसके बावजूद भी आपको कैसे समय निकाल पाते हैं to go through all this expeditions, because this is not an easiest task at all. क्या हुआ था, मतलब मैंने जब एक बार आप किसी चीज को तय कर लेते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, तो सब चीजें आपके फेवर में आ जाती है. जब मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक क्लाइम करना है, तो मैंने मेरी ये विश हमारे तब के पुलिस कमिश्नर साहब संजय कुमार सर, उनको मैंने बताया. तो उन्होंने खुद मुझे उसके लिए टाइम देने के लिए सोचा और मुझे एक साइड पोस्टिंग दे दिया, जो क्विक रिस्पांस टीम रहती है, जैसे नवी मुंबई में क्विक रिस्पांस टीम है, वहां पे मुझे पोस्टिंग दे दिया. तो वहां पे एक्चुअली उनका एम ही फिजिकली फिट रखना है कमांडोज का. तो वो मेरे बेनिफिट रहा मुझे, और मैंने फिर क्विक रिस्पांस टीम में ड्यूटी करना शुरू कर दिया. फिर वहां पे फिजिकल प्रिपरेशन सब चीजें के लिए मुझे टाइम मिल गया. तो मैं तो अभी भी थैंकफुल हूँ श्री संजय कुमार सर का, जिन्होंने मुझे वो इतना टाइम दे दिया मेरे प्रिपरेशन के लिए. क्या क्या कठिनाई आपको आई रास्ते में? Because again, as I said, the challenge is quite big, and I think a team of 9 people had left, but some people fell ill due to COVID and other illnesses. So what challenges did you face? Yes. Basically, if you have to climb Mount Everest like 8,000 meter expedition, you must have 3 things. First is physical ability, second is mental ability, and third is financial support, financial ability. So in physical ability, I have climbed many 6,000 meter peaks
before going to Everest expedition in Himalayas, also completing one basic mountaineering course in Manali, as well as also regularly practiced in running, like running, cycling, hiking. Then in mental ability, I was regularly doing yoga, pranayam, and meditations. For this expedition, I had valuable help from Sri Sanjay Kumar sir, CP Navi Mumbai, as well as my colleagues and friends and my commandos in QRTs, because uh, this is third step of financial help. Or financial support is very important in like this expedition. So I think uh, all these supporters is possible Everest expedition. जैसे अभी आपने बोला, फाइनेंस इज समथिंग विच इज रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज ऐसे एक्सपीडिशंस में खर्चा बहुत आता है. देन हाउ डिड Yes. यू मैनेज द फंड्स? This is third. Actually, this is financial support. This is the third major hurdle in like Everest expedition. So I'm because repeat. I'm really thankful to ex-CP Mr. Sanjay Kumar sir and all my colleagues, all my batchmates, my sub-inspector batchmates, and my QRT commandos, all people's various fields people's support me, and that's why I think without their support I not have managed to bear expedition. So thanks to all peoples. रास्ते में क्या क्या कठिनाई आई? एवरेस्ट क्योंकि टेम्परेचर, वेदर, एवरीथिंग इज वेरी हार्श एंड सिवियर. सो आपको क्या क्या कठिनाइयों का झेलना पड़ा, सामना करना पड़ा? क्या होता है ना, जब हम एवरेस्ट क्लाइम करते हैं, जो एक्चुअली 8000 मीटर का अबो जितना भी हम पीक क्लाइम करते हैं, 8000 मीटर के ऊपर डेथ जोन माना जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम है. मतलब 30% ऑक्सीजन की लेवल है. हमारे सी लेवल में तो 95% से अबो है. तो वो सबसे बड़ा हर्डल है कि एवरेस्ट एक्सपीडिशन में कि आप वहां पे O2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है. और दूसरी चीज, जो बेस कैंप से कैंप वन तक का जो, जब नेपाल साइड, दो साइड से एवरेस्ट क्लाइंब होता है, नेपाल और चाइना. जो साउथ साइड, नेपाल साइड का सबसे बड़ा हर्डल है वो बेस कैंप से कैंप वन तक का ही हर्डल है. वहां पे खुम्बू आइसफॉल है, वहां पे जो मूविंग ग्लेशियर है, मतलब वो कभी भी वहां पे जो बड़े बड़े आइस के वॉल्स है वो कभी भी कोलैप्स हो जाते हैं और कभी भी फिर रूट चेंज हो जाता है. तो वो एक सबसे बड़ा हर्डल था. और दूसरी चीज, अगर एवरेस्ट जैसे एक्सपीडिशन में हम फिजिकल प्रिपरेशन कर लेते हैं, मेंटल प्रिपरेशन कर लेते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है, सब चीजें सही होने के बाद जब नेचर अगर आपके साथ नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है. जैसे इस बार हमारे एक्सपीडिशन के बीच में हमारा एक्चुअली 21 मई का एक्सपीडिशन का डेट था. वेदर फोरकास्ट के हिसाब से वेदर विंडो, मतलब वहां पे 8000 मीटर के ऊपर विंड का स्पीड जो है वो 25 या 30 किलोमीटर पर आवर के अंदर रहता है, तभी वो वेदर विंडो सही रहती है. लेकिन इस बार वो वेदर विंडो मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि हमारे इधर एक तोक्ती नाम का साइक्लोन आया था. तो साइक्लोन का इफेक्ट 8000 मीटर के भी ऊपर हुआ था, तो विंड का स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था. तो वो भी एक प्रॉब्लम था कि हम वेदर विंडो अच्छी नहीं मिल पा रही थी. तो अगर सब चीजें अच्छी है और नेचर अगर आपके साथ नहीं है तब भी दिक्कत हो जाती है. तो वो सब हर्डल्स को पार करते हुए फाइनली हमने 23 मई का वेदर विंडो लेने की सोच लिया. लेकिन वहां पे भी जब 22 मई को जब हमने कैंप 4 से समिट के लिए पुश किया, तब भी वेदर मतलब अबो 40-45 के करीब था. फिर भी हमने वो जाने की डिसीजन लिया और शायद वो डिसीजन हमारा सही हुआ और 23 के मॉर्निंग को हमारा समिट हो पाया. आपने वहां पहुंचकर, आफ्टर रीचिंग द टॉप, द हाईएस्ट पीक, आफ्टर अनफर्लिंग द नेशनल फ्लैग, आपने एक महाराष्ट्र पुलिस का पोस्टर अनफर्ल किया, एंड आल्सो अ पोस्टर I think which had the photo of your mother, which said respect women. I think
think this was a Yes. beautiful gesture and it gives a good message to everyone. क्यों आपने ऐसा सोचा that you should put a poster with the respect of women slogan? Yes. क्या होता है ना, मतलब जैसे मैं अभी एक महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से हूँ, तो मैंने देखा है मतलब सिटीज में तो बहुत सारे जगह मतलब वुमेन्स को अभी रिस्पेक्ट उतना तो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गांव में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे जो पुरुष प्रधान संस्कृति है हमारी इंडिया की, तो वुमेन्स के लिए इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। और मैंने तो कहीं पढ़ा है कि वुमेन्स का आधा वर्ल्ड तो वुमेन्स का है, मतलब अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए, पॉपुलेशन के हिसाब से आधा वर्ल्ड वुमेन्स का है, और रिमेनिंग जो आधा वर्ल्ड है वो तो वुमेन्स की वजह से ही है, मतलब उन्होंने ही उनको जन्म दिया है। तो एक हिसाब से पूरा वर्ल्ड वुमेन का है, और उतना रिस्पेक्ट तो उनको नहीं मिल रहा है। मतलब मैंने जो देखा, गांव में देखा है, तो मैंने सोचा कि वुमेन्स को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और मैंने माँ को भी मैंने मेरे बचपन से देखा था, और गांव में रहने के कारण मुझे पता है कि वुमेन्स को कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे सबके लिए मैसेज जाए। और एवरेस्ट एक ऐसा प्लेस है जहां से आप किसी भी चीज का मैसेज देते हो तो वो वायरल हो जाता है, और बहुत सारे लोगों को वो मतलब उससे कुछ एनर्जी, उससे कुछ अप्रिशिएट करते हैं लोग, और कुछ लोगों को वो सबक भी मिल जाएगा कि नहीं भाई ऐसा करना चाहिए। तो मैंने यही सोच था मेरा, और इसलिए मैंने, और माँ का तो मतलब मैं अगर क्लाइंब भी करने के बाद भी मैं, जैसे मराठी में एक स्लोगन है, स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी, मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अगर माँ को फिर आप नहीं पा सकते, इसलिए मैंने वो मैसेज देना चाहा सबको। आपको कुछ एनी मेमोरेबल इंसिडेंट एक्सपीडिशन के दौरान कुछ हुआ हो जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? यस, क्या हुआ था, जब मैंने क्लाइंब शुरू किया, हमने फाइनल समिट पुश के लिए, तो कैंप 4 से हमने 22 मई को रात को 10 बजे समिट का पुश ले लिया, मतलब समिट करना शुरू कर दिया, क्लाइंब करना शुरू कर दिया। जब हमने सुबह 6:30 को हम 6:30 AM को समिट किए, फिर रिटर्न आते वक्त वहां से फिर कैंप 4 तक आना पड़ता है आपको, या फिर कैंप 4 और समिट के बीच में एक बालकनी नाम का एक स्पॉट है, वहां पे आपका ऑक्सीजन रिफिल हो जाता है, मतलब नया ऑक्सीजन लगा सकते हैं आप। तो फिर जब मेरा समिट से वापस आ रहा था, तभी शायद 100-200 मीटर नीचे आने के बाद मैं रुकना चाहा, मुझे पानी पीना था। तो हमारे साथ हर क्लाइंबर्स के साथ एक शेरपा रहता है, गाइड रहता है, उसका कहना था कि नहीं आप नहीं रुक सकते, आपको नीचे जाना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं भाई, पानी तो पीना पड़ेगा, मैं नीचे नहीं जा सकता पानी पीने के अलावा। तो फिर उसने बताया कि आपका ऑक्सीजन खत्म हो गया, आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो तब तक तो मैं सही चल रहा था, जब उसने बताया कि आपका आर्टिफिशियल ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तब मुझे ऐसा लगा कि भाई 8000 मीटर के ऊपर विदाउट ऑक्सीजन चलना मतलब डेथ है आपकी, मतलब आप सर्वाइव नहीं कर सकते अभी। तो एक मेंटली इफेक्ट हो गया, मैं 10 स्टेप चलने के बाद मुझे रुकना पड़ रहा था, मतलब 10 स्टेप चलूं तो मैं बैठना पड़ रहा था। तो इतना मेंटल इफेक्ट हो गया उसके बताने के बाद। बताने के पहले तो मैं अच्छे से चल रहा था, जब उसने बताया तब ये इफेक्ट हो गया। और फिर वैसे ही मैं धीरे धीरे बालकनी तक आ गया, और बालकनी में आने के बाद वो शेरपा ने, जो गाइड था, होता है हमारा नेपाली गाइड, उसने ऑक्सीजन रिफिल किया, लेकिन खुद के लिए, मतलब उसके खुद के लिए रिफिल किया, मुझे लगा। तो मैंने सोचा कि शायद उसका एज भी 45 के अबव था, और उसको जस्ट कोरोना से रिकवर हो गया था, बेस कैंप में उसको कोरोना हो गया था, और बिना किसी मेडिसिन के वो बेस कैंप में रिकवर हो गया। शायद वो कमाल की फिजिकल एबिलिटी होगी उनकी। तो मैंने सोचा कि शायद उसके लिए उसने खुद को लगाया होगा, चलो हम देखते हैं, हम खुद ऐसे ही क्लाइंब करेंगे। तो फिर हम नीचे डिसेंड हो रहे थे कैंप 4 की तरफ। तो एक स्टेज ऐसा आ गया, कैंप 4 शायद 200 मीटर रहा होगा, वहां पे मैं मतलब स्लाइडिंग करने की नौबत आ गई मेरे ऊपर, मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ, लिटरली स्लाइडिंग करने की कंडीशन में आ गया मैं। तब जाके उसने मुझे वो ऑक्सीजन जो उसको लगाया था उसने मुझे दे दिया। फिर शायद ऑक्सीजन का ही इफेक्ट होगा या मेंटल इफेक्ट होगा, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मैं तो अभी ऑक्सीजन सपोर्ट में हूँ, अभी मैं चल सकता हूँ। तो मैं उठ के फिर लिटरली भाग रहा था, मतलब कैंप 4 में कुछ मिनटों में मैं पहुंच गया। तो फिर मैंने शेरपा से पूछ लिया कि भाई ऐसा कैसा किया तूने, तू तो मेरा गाइड है, तू ही मेरा सपोर्टर है, और तूने खुद को कैसे ऑक्सीजन लगाया? तो उसका कहना था कि नहीं, आपका मैंने स्टेमिना चेक करना था। तो मुझे थोड़ा सा हंसी आ गया कि भाई
अगर मेरी डेथ हो जाती 8000 मीटर के ऊपर तो क्या स्टेमिना चेक कर लेता तुमने। तो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस था मुझे वो। हम फिर से दोबारा से when you're talking about financial support, there have been allegations, people have been saying that government support in this case is not very much. In fact, you know, यस यस कई बार financial support promise भी की जाती है, but that remains hollow and it remains only on paper and people have not received that support. आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यस मुझे तो लगता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट का क्या प्रॉब्लम है, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है जैसे अदर स्टेट में है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट हो गया या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हो गया, पंजाब गवर्नमेंट हो गया, उस गवर्नमेंट में कुछ प्रोविजंस रखे हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में इसकी काउंट करते हैं इसको, और इसको फिर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, या फिर अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको फिर कोई प्रमोशंस देते हैं। वो प्रोविजन अदर स्टेट में है, हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट में तो वो प्रोविजन नहीं है। अभी भी मुझे बहुत सारे लीडर्स ने, बहुत सारे मिनिस्टर ने, ऑनरेबल मिनिस्टर ने अभी आश्वासन दिया है कि हम दे देंगे, सपोर्ट करेंगे, पता नहीं, लेकिन होप सो कि इन फ्यूचर महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल्स बनाएगा या फिर कोई डिसीजन लेगा जिससे आगे जाके कोई अगर करना भी चाहे, माउंटेनियरिंग में करियर करना चाहे या फिर कोई माउंट एवरेस्ट जैसा कोई एक्सपीडिशन करना चाहे तो उसको सपोर्ट मिल जाएगा। आपकी पहली पोस्टिंग was, as you had also mentioned, was in Naxal affected Gadchiroli district. In fact, you had led the team, commando team, in 7 Naxal encounters. उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। क्या है ना, मतलब जो गढ़चिरौली है हमारा महाराष्ट्र में, एक दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे है जैसे गढ़चिरौली और गोंदिया है, वो दो डिस्ट्रिक्ट में नक्सल अफेक्शन ज्यादा है, लेकिन वहां के जो आम लोग हैं, जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं, वो बहुत ही सही है। मतलब जैसे मैं एज कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र, मुझे तो लगता है कि जो नक्सल अफेक्टेड एरिया के जो लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, वो बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही पुअर लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मतलब वो एक्चुअली नक्सल जो है वो शुरू हुई थी अलग उद्देश्य से, लेकिन अभी थोड़ा सा वो डाइवर्ट हो गए और वो जो अलग अलग ही काम कर रहे हैं अभी, लेकिन एक्सट्रॉशन का काम कर रहे हैं ज्यादातर वो नक्सल लोग जो है। तो अभी वो नक्सल के साथ मेरे 7 एनकाउंटर हो गए, उसमें मेरा जो कमांडो 60 नाम की एक गढ़चिरौली में फोर्स है, वहां पे C60 एक टीम का मैंने लीड किया, और उसमें एक्चुअली पूरा इनकाउंटर का इंसिडेंट एक्चुअली साइटेशन भी आया है, तो उसमें बताने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी जो पोस्टिंग, हमारा जो अपॉइंटमेंट हुई है जो अनआर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर करके हुई है, लेकिन गढ़चिरौली में जो एक्सपीरियंस था वो आर्म्ड फोर्स का था, पूरा मिलिट्री टाइप एक्सपीरियंस था। मतलब जैसे फिल्मों में गोलियां चलती है, हम वो हीरो कोई फायर कर लेते हैं, ऊपर से गोलियां चलती है, सेम एक्सपीरियंस था। मतलब वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, मैं मेरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरे करियर का जो टर्निंग पॉइंट है वो गढ़चिरौली है, क्योंकि गढ़चिरौली में मुझे इतने मतलब कुछ अच्छा काम करने का मौका मिला, और उसके ऊपर मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले, रिवार्ड मिले, और उसका लाइफ टाइम एक्चुअली सपोर्ट मिलेगा मुझे उसका। तो एक गढ़चिरौली का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। कोई एक किस्सा आप हमें शेयर करना चाहेंगे गढ़चिरौली के उसमें एक्सपीडिशन ही बोलेंगे? यस एक्चुअली क्या हुआ था, हम एक बार हमारी टीम लेके, क्या रहता था, कमांडो टीम जो थी, कमांडो 60 टीम जो थी हमारी, तो उसका मेन मोटिव यही था कि नक्सल का इंफॉर्मेशन निकालो और फिर उसके ऊपर ऑपरेशन करो, फिर उसके ऊपर ऑपरेशन करके उनको एक तो कॉर्डन करो, या फिर वो सरेंडर होते तो सरेंडर करवाओ, नहीं तो फिर इनकाउंटर करो। तो फिर एक बार हम ऐसे ही एक ऑपरेशन के लिए गए थे, तो उस बीच में हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि नक्सल का एक ग्रुप 50-60 50 या 60 नक्सल का ग्रुप एक जंगल में एक जगह पे है। तो हमने उस जगह की तरफ हम चलना शुरू कर दिया। तो फिर वहां पे जो हमने चलना शुरू कर दिया, तो नक्सल क्या करते हैं, मतलब बहुत बार
आईडी जो रहते हैं, ब्लास्ट जो रहते हैं, वो बहुत जगह पे लगा के रखते हैं। जैसे जहाँ पे रूट है, जहाँ पे उनको एक्सपेक्टेशन है कि वहां से पुलिस या आर्म्ड फोर्स आ सकती है, वहां पे वो ब्लास्ट लगा के रख लेते हैं। तो मतलब एक पेड़ के आड़ में हम छुपे थे, जहां से हमें थोड़ा थोड़ा आगे करके जाना था। तो अचानक से फायरिंग शुरू हो गया। फिर जवाब में हमने भी फायर शुरू कर दिया। तो जब हम नक्सल के बेस में पहुंच गए, वहां से तो फायरिंग के बाद जनरली वो इतना ज्यादा फायरिंग के बाद नक्सल भाग जाते हैं। जब हमने बेस में पहुंच गए, तो वहां पे हमें बहुत सारे केबल्स दिखे, जो ब्लास्ट लगाए रहते हैं उसका केबल उनके पास रहता है। तो हम जब ने केबल खींचते खींचते एक जगह पे पहुंच गए कि केबल कहाँ तक जाता है, तो लिटरली वो केबल वहां पे गया था जहां पे हम एक 2-3 मिनट पहले जिस पेड़ के पीछे हम छुपे थे, वहां पे वो ब्लास्ट का कनेक्शन गया था। तो वो हमारा मतलब लक था कि अगर, क्योंकि हम एक 2 मिनट भी हम जल्दी नहीं पहुंचते तो शायद वो केबल कनेक्ट कर पाते, और वो केबल कनेक्ट करते तो ब्लास्ट हो जाता। तो ये एक मतलब लाइफ का मतलब जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है ना, वो गढ़चिरौली में बहुत सारे साथी एनकाउंटर में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और जैसे मैंने बताया कि एक आर्म्ड फोर्स का मतलब हमारे सैल्यूटेबल जो आर्मी है, जो हम यहाँ पे तो पुलिस, वैसे भी मैं बोलता हूँ कि पुलिस का काम कुछ भी नहीं है आर्मी के कंपेयर। तो आर्मी का थोड़ा सा फील मिला कि आर्मी कैसे काम करती होगी। ये तो नक्सल है और वो तो टेररिस्ट रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज का अटैक रहता है, तो उसमें तो कितना कठिनाई से काम करते होंगे। सच में वो लोगों का सैल्यूट है मेरा। हमारा सैल्यूट आपको भी है, सारी पुलिस ऑफिशियल्स को भी है, and also to the armed forces, you have rightly said. I would like to tell the viewers that Mr. Gaurav, he is the recipient of President Gallantry Medal, Special Service Yes. Medal, and also Antrik Seva Patak. In fact, Yes. he has received a total of 95 rewards for various services in the police force. Was this daring attitude of yours that motivated you to join the police force? क्यों आपने सोचा मेरे को पुलिस फोर्स में जाना है? yes. नहीं, एक्चुअली क्या रहता है मतलब पुलिस की जो वर्दी है, वर्दी का क्रेज रहता है। मतलब गांव में तो ज्यादा रहता है, क्योंकि सिटीज में तो पुलिस के साथ घुल मिल जाते हैं लोग। तो गांव में थोड़ा सा ज्यादा उसका अट्रैक्शन रहता है कि नहीं भाई, मुझे पुलिस फोर्स ज्वाइन करना है। और हमारे इधर क्या था, मैं सांगली डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, महाराष्ट्र के। वहां पे एक हमारे हमारे इधर के एक आईपीएस है, जो अभी आईजी ज्वाइंट कमिश्नर है मुंबई के, विश्वास नांगरे पाटिल सर। तो वो तब आईपीएस बने थे और उन्होंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच उनके चल रहे थे, मतलब कॉलेजेस में या फिर इंस्टीट्यूट में, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे। तो वो एक मोटिवेशनल स्पीच, मतलब किसी ना किसी का एक मोटिवेशन होना चाहिए। और वो जो बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर थे, उनका भी एक मोटिवेशन हमें वो दिल को ये कर रहा था कि नहीं, हमें पुलिस में ज्वाइन करना है। वो वर्दी का अट्रैक्शन था, इसलिए शायद मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर दिया। और ज्वाइन करने के बाद ये इनकाउंटर वगैरह बाद में हो गए। So, अब what is your next plan? My next plan, my future plan is I will I will climb to 7 highest peak in 7 continents in world in 1 year. तो ये मेरा प्लान है कि मैं जो वर्ल्ड के 7 बड़े शिखर है, वो बड़े पिक्स एक ही साल के अंदर क्लाइम करना चाहता हूँ। एक तो अभी मई 2001 में हो गया है। अभी नेक्स्ट जुलाई में मैं एल्ब्रूस का प्लान कर रहा हूँ, जो यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक है। फिर अगस्त में किलिमंजारो का प्लान कर रहा हूँ, जो साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है। तो शायद होप्स हो कि एक साल के अंदर, नेक्स्ट मई 2022 के अंदर ये सब क्लाइम हो जाएगी। What message would you like to give to the youngsters, to the youths, Yes. so that they can also join the police force, and if they want to learn something, क्या आप उनको बोलना चाहेंगे? Yes. मैं तो सबके लिए एक ही मैसेज देना चाहूंगा, जो अगर मान लो कोई स्टूडेंट हो या कोई बिजनेसमैन हो, कोई सर्विसमैन हो, एवरेस्ट मैं एक सिंबॉलिक मानता हूँ। मतलब एवरेस्ट एक सिंबल है। मतलब वर्ल्ड का हाईएस्ट क्या है, तो एवरेस्ट है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए हाईएस्ट क्या है, तो उसके लिए हाईएस्ट है उसके एकेडमिक करियर में सबसे अच्छे मार्क्स पाना। कोई अगर बिजनेसमैन है तो उसके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा तरक्की करना, वही उसका एवरेस्ट है। क्योंकि
एवरेस्ट हर किसी को एक्चुअल एवरेस्ट क्लाइंब करना शायद मुश्किल, शायद आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों की फिजिकल एबिलिटी होगी, मेंटल एबिलिटी होगी, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है। तो हर किसी के लिए एक्चुअल एवरेस्ट क्लाइंब करना शायद आसान नहीं होगा। तो हर किसी के लाइफ में उसका उसका एवरेस्ट होना चाहिए। मतलब हर किसी ने अपने अपने करियर में अगर टॉप करना है, टॉप किया, तो वही उसका एवरेस्ट है। तो एवरेस्ट एक सिंबॉलिक मान के हर किसी ने रहना चाहिए, हर किसी ने अपने अपने डेली रूटीन करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। Thank you so much, Mr. Gaurav, and we wish you all the best for your future expeditions. And the viewers, please stay safe, stay healthy. Thank you, Mr. Gaurav. Thank you.